روشنی پر غور کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ آپ سب کو سلام۔ سب سے پہلے تو میں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کا شکر گزار ہوں کہ ایک دفعہ پھر مجھے آپ لوگوں کے درمیان خدا کے کلام کو سنانے کا موقع ملا، اور اس کے بعد میں اپنی گیتسمنی چرچ کمیٹی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے دعوت دی کہ آپ لوگوں کے درمیان آ کر خدا کے کلام کی منادی کروں، اور اہل محلہ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ سب جو ہے اس عبادت میں شرکت کرنے کے لیے آئے۔ آج کی عبادت جو ہے بڑی خاص عبادت ہے، گڈ فرائیڈے کی عبادت ہے، مبارک جمعے کی عبادت ہے، اور ہم خداوند یسوع مسیح کے وہ 7 صلیبی کلمات سن رہے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے آخری وقت پر اپنے لب مبارک سے وہ 7 صلیبی کلمات فرمائے، اور جس طرح یوحنا کہتا ہے کہ میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑے آنر اور اعزاز کی بات ہے کہ میں مسیح کے وہ آخری کلمات، ان میں سے چوتھا کلمہ آپ کے ساتھ جو ہے میں اس کو بیان کروں گا۔ سو آئیے ہم خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے۔ ابھی بیٹی نے تلاوت کیا متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 27 باب اور اس کی 25-26 آیات جو ہے آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور لکھا ہے، اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، آپ 3 کلمے سن چکے ہیں۔ پہلا کلمہ معافی کا کلمہ، جو کہ بنی انسان کے لیے اشد ضروری ہے، معافی، اور خداوند یسوع مسیح نے نہایت ہی دکھ اور کرب کی حالت میں جبکہ وہ تکلیف میں تھے، انہوں نے اپنی فکر نہ کی بلکہ اس نے دوسروں کی فکر کی، اور اس نے کہا باپ ان کو معاف کر۔ اور پہلا کلمہ معافی کا، اور دوسرا کلمہ نجات کا کلمہ ہے۔ نجات اس وقت ملتی ہے جب ہماری زندگی میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ وہ ڈاکو جو کہ گناہگار تھا اور اس نے گناہوں کام کیے تھے، لیکن صلیب پر وہ پچھتایا، اور یسوع مسیح جو دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے، جب اس نے کہا ہے خداوند تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، اس نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور خداوند یسوع نے اس کو نجات دی۔ جب ہم پچھتاتے ہیں، ہم پچھتاوا کرتے ہیں اپنی گناہگار زندگی سے، تو خداوند ہمیں نجات دیتا ہے۔ اور تیسرا کلمہ آپ نے محبت کا کلمہ سنا، جو کہ ایک احساس کا کلمہ ہے۔ انسان ہوتے ہوئے وہ احساس رکھتا ہے اپنی ماں کا، اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ اب چوتھا کلمہ آپ کے سامنے جو ہے وہ میں بیان کروں گا۔ یہ کلمہ جدائی کا کلمہ بھی اسے کہا جاتا ہے، اور بہت سے عالم اور سکولر اس کو کفارے کا کلمہ کہتے ہیں۔ کفارہ جو ہے وہ بنی انسان کے لیے اشد ضروری تھا۔ جب خدا نے آدم کو بنایا تو آدم اور ہوا کو خدا نے کامل بنایا، ان کو کامل بنایا، اور ان کو خدا نے باغ عدن میں رکھا، اور خدا نے کہا کہ اچھا ہے۔ اور اس آدم کو جب اس نے گناہ کیا، اس نے خدا کی نافرمانی کی، اس کو خدا نے باغ عدن سے نکال دیا، اپنی حضوری سے نکال دیا۔
सो मेरे अजीजों, अब दोबारा आदम को कामिल करने के लिए, उसको कामिल बनाने के लिए, उसको बागे अदन में दोबारा लाने के लिए, फिरदौस में दाखिल करने के लिए एक कामिल कुर्बानी की जरूरत थी, एक कामिल कुर्बानी की जरूरत थी, एक कामिल कफारे की जरूरत थी। इसलिए इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है कि उसने हमारे लिए एक बदन तैयार किया और वो हमारे लिए कामिल कुर्बानी बना। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि लिखा है कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। अंधेरा, यहाँ जो मुल्क का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यूनानी में, आप जब इसका मुताला करें तो इसको पूरी दुनिया भी आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया था, क्योंकि मेरे अजीजों ये अदालत का वक्त था। और जब खुदा अदालत करता है तो खुदा ने मूसा के दौर में भी जब अदालत की तो लिखा है कि सूरज की रोशनी जाती रही, और मुकाशवा में भी लिखा है कि जब खुदावंद यीशु अदालत करने के लिए आएगा तो सूरज तारीक हो जाएगा। और यहाँ पर भी लिखा है कि तमाम दुनिया में अंधेरा छाया रहा दूसरे पहर से लेकर तीसरे पहर तक। दूसरा पहर दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है ये दूसरा पहर और तीसरा पहर है। खुदावंद यीशु मसीह मेरे अजीजों, जब उन खुदा बाप ने अपने बेटे की अदालत की, और खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदावंद के कलाम के मुताबिक यसाया उसका 59 बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, तुम्हारी बदकिरदारी के बाइस तुम्हारे और खुदा के दरमियान जुदाई आ गई है। और रोमियों के खत में लिखा है कि हर एक जान ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। इंसान की किताब में लिखा है कि कोई भी रास्तबाज नहीं और खुदा शरीरों से दूर है। अगर हम गुनाहगार हैं, अगर हमारी जिंदगी में नापाकी है तो खुदा हमसे दूर है। और खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे अजीजों वो हमें खुदा के साथ दोबारा मिलाप कराने के लिए, उस जुदाई की दीवार को गिराने के लिए जो है वो ये चौथा कलमा सलीब पर बयान किया, एली एली लमा शफकतनी। खुदावंद यीशु मसीह ने ये चौथा कलमा अरामी जबान में बयान किया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अरामी जबान जानते थे, अरामी जबान बोलते थे। और इसका मतलब है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरा और आपका मसीहा वो जो खुद कलमा खुदा है, लिखा इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा था। ये सारी कायनात खुदावंद यीशु के वसीला से पैदा हुई। और वो सलीब पर कहता है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो कहता है मैं और बाप एक हैं, बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और लिखा है खुदा की सारी अलूहियत उसमें सकूनत करती है। और वो सलीब पर कहता है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि वो मेरे और आपके गुनाहों का गुफारा दे रहा था। वो अदालत का वक्त था, चारों तरफ तारीकी है और खुदा का बेटा सलीब पर है। वो कामिल इंसान, खुदा ने एक कामिल बदन तैयार किया ताकि मेरे लिए और आपके लिए वो कुर्बान हो। वो कुर्बानियां जो अहदे अतीक में हमें मिलती हैं वो इस कामिल कुर्बानी का अक्स है। वो हकीकी कुर्बानियां नहीं, जिस तरह हारून मूसा का भाई वो हर साल अपनी कौम के लिए कुर्बानी देता, यौम कुफारा मनाया जाता और वो उस बर्रे का खून पाक तरीन मकाम में कफारा गाह में लेके जाता और उस पर छिड़का जाता
ताकि हमारी कौम क्या हो जाए, उसके गुनाह माफ हो जाए। लेकिन ये तमाम कुर्बानियां इस हकीकी कुर्बानी का अक्स है। सो मेरे अजीजों, खुदा ने मूसा से कहा अपने भाई हारून को बोल हर वक्त पाक तरीन मकाम में मत आया करे, वहां मेरी हजूरी होती है, वहां मैं रहता हूं, वरना तेरा भाई मर जाएगा। सो मेरे अजीजों, हर कोई पाक मकाम में दाखिल नहीं हो सकता था और खुदा के साथ कभी कभी किसी की मुलाकात होती थी। खुदा के साथ हर वक्त हर कोई नहीं मिल सकता था। अहदे अतीक में सो खुदावंद यीशु मसीह ने इस कामिल कुफारे के वसीला से, इस जुदाई के वसीला से, जिसके लिए उसने गतसमनी बाग में लिखा है, रो रो कर दुआ की कि हो सके तो ये प्याला मुझसे चल जाए। और लिखा है उसका पसीना गोया खून की बूंदे बन बन कर गिर रहा था। उसका पसीना गोया खून की बूंदे बन बन कर गिर रहा था। खून नहीं बन गया था, खून की तरह मोटे मोटे कतरे। और जब इंसान की बॉडी से उसका पानी निकल जाता है तो वो मरने की हालत में आ जाता है। और यीशु मसीह, मेरे अजीजों, इब्लीस यीशु मसीह को गतसमनी बाग में ही मार देना चाहता था, लेकिन लिखा उसने अपनी बशरियत के याम में रो रो कर दुआएं की कि हो सके तो मुझे इस मौत से बचा ले। ये मौत वो थी जो गतसमनी बाग में यीशु ने दुआ की थी। हालांकि यीशु तो आया ही इस मकसद के लिए था, कुर्बान होने के लिए, कुफारा देने के लिए, क्योंकि यीशु सलीब पर मरना चाहता था मेरे लिए और आपके लिए। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जिस तरह मूसा साल में, उसका भाई मूसा का भाई हारून साल में एक दफा वो बर्रे का खून लेकर उस कुफारा गांव में जाता मेरे अजीजों, और अपनी कौम के लिए, वो उनके गुनाहों की माफी के लिए, तो मेरा और आपका मसीहा सलीब पर चढ़ गया। और लिखा है अबार की किताब में, खुदावंद का कलाम बयान करता है कि उसने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान सलीब पर उंडेल दी। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जो लफ्ज कुफारा गांव के लिए इस्तेमाल हुआ है वही यूनानी लफ्ज खुदावंद यीशु की सलीब के लिए इस्तेमाल हुआ है। हेलेस्ट्रॉन लफ्ज जो यूनानी लफ्ज है, ये मसीह की सलीब के लिए इस्तेमाल हुआ है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सब की कफारा गाह मसीह की सलीब है। हर कोई खुदा के पास आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हर कोई खुदा के पास आ सकता है, क्योंकि मेरे और आपके गुनाहों का कफारा हो चुका। वक्त बहुत महदूद है। सो आइए हम सब अपने सब कुछ कहें दुआ।